Hello students, today we are going to read the remaining part of the chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom. So far we have read that earlier there was a system of apartheid in existence in South Africa, and that was the system of racial discrimination, and South African blacks have fought against that system for 300 years, and thereafter on the 10th of May 1994 this system came to an end when Nelson Mandela was chosen as the first black president of South Africa. And here in this chapter, he talks about the day when his swearing in ceremony was held, and he talks about the various international leaders who had gathered there to congratulate him on that momentous occasion. Thereafter, in his speech, he pledges his loyalty to uphold and maintain the Constitution of the Republic of South Africa. He announces publicly that from then onwards there would be no discrimination between the blacks and the whites, and whites would be treated at par with the blacks. So he announces those a slew of measures also, that he has plans to lift the people out of poverty, and the task is not yet over. And thereafter he talks about the military generals who saluted him, and a long while ago they people would not have saluted him, rather they would have arrested him. And thereafter he pays his humble thanks to the leaders who had gone before him, and he calls himself the sum of all those patriots who had gone before him, and he lamented the fact that those people were not present that day to see that South Africa. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. So Mandela says that ये जो अपार्टहिड के जो सिस्टम था, ये जो पॉलिसी थी जो ब्लैक्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन की, इससे उनके देश के ऊपर और देश के लोगों के अंदर एक घाव छोड़ा है, एक जख्म छोड़ा है, जिसके जो घाव है वो जल्द ही अब भरेगा नहीं. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. तो मंडेला कहते हैं कि हम लोग इस घाव से उबरने में हम लोगों को पता नहीं कितने साल लग जाएं. अगर मैं जनरेशन ना कहूँ तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे. ये जो गहरा, ये जो प्रोफाउंड, ये जो बड़ा घाव हमें मिला है इतने सालों के अंदर. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulus, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, and the Robert Subokwes of our time. तो मंडेला ये कहते हैं कि ये जो हम लोगों पे दशकों तक, डेकेड आई मीन अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, जो दशकों तक हम लोगों पे जो जुल्म हुआ है, जो ऑपरेशन हुआ है, जो निर्दयता हम पे की गई है, ब्रुटैलिटी की गई है, इसका एक अनइंटेंडेड इफेक्ट भी हो गया है. मतलब जो लोग हम पे जुल्म करते रहे, उनका ये इंटेंशन नहीं था कि ऐसा हो जाए, लेकिन एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी यहाँ पे हमें मिला है कि इस जुल्म को सहकर हमारे देश के अंदर बड़ी महान शख्सियत पैदा हुई है. जैसा कि उन्होंने नाम कुछ बताए हैं यहाँ पे, कि जैसे ओलिवर टैम्बोज, द वॉल्टर सिसुलूस, द चीफ लुथुलीज, द यूसुफ डैडूज, द ब्रैम फिशर्स एंड द रॉबर्ट सुबुक्वेज. तो कहता है कि ये जो महान शख्सियत जो बनी है, इन्हीं जुल्मों को सहन करके बनी है, और शायद अगर इतने जुल्म ना हुए होते तो ये महान शख्सियत इतनी महान नहीं कहलाती. स्टूडेंट्स, एक चीज़ यहाँ पे नोट कीजिएगा. आर्टिकल the has been used before proper noun, and after that we have used s with those names, the Walter Sisulus, the Oliver Tambos. So this is a, you can say, special use in which we use the proper noun as common nouns. मतलब अगर मैं बात करूँ द ओलिवर टैम्बोज, तो इसका मतलब ये कि वो लोग जिनके अंदर ओलिवर टैम्बो जैसी क्वालिटी थी. अगर मैं सिंपली बात करूँ, जैसे क्रिकेट में, इफ़ आई से द विराट कोहलीज, दैट मीन्स समबडी हु प्लेज लाइक विराट कोहली. इफ़ आई से रोहित शर्माज, दैट मीन्स समबडी हु प्लेज लाइक रोहित शर्मा. तो इसका मतलब इस सेंस में हम ले सकते हैं. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू हियर, जैसे इसी के साथ एक और आर्टिकल भी हम प्रॉपर नाउन के साथ यूज कर सकते हैं. जैसे इफ़ आई से ही डिड अ तेंदुलकर देयर, ही डिड अ माइकल जैक्सन देयर. सपोज माइकल जैक्सन यूज टू डांस इन अ पर्टिकुलर वे, और अगर कोई उनके स्टेप्स जो है एक दो मतलब रिपीट करता है या उन्हीं के जैसे स्टेप्स करता है, तो आई कैन से दैट ही डिड अ जैक्सन देयर.
Similarly, Virat Kohli is perhaps one of the best drivers of the cricket ball on this planet at the moment. So, if I say that if somebody plays a cover drive like Virat Kohli, then I can say that he did a Kohli there. If somebody dances like Jackson, then I can say that he did a Jackson there. If somebody plays like Kohli, then I can say that he did a Kohli there. So, in this way, we can use these articles. Then Mandela says that man of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. तो मंडेला कहते हैं कि ये लोग जो थे, जिन लोगों के नाम उन्होंने लिए हैं, ये लोग इतने ज़्यादा हिम्मत वाले, इतने ज़्यादा बहादुर थे, इतनी इनके अंदर इंटेलेक्ट थी, बुद्धि थी, इतने ज़्यादा ये दयालु थे कि शायद इनके जैसे लोग दोबारा पैदा ही ना हो. So he speaks in very high terms about these people, Nelson Mandela. Perhaps it required such depths of operation to create such heights of character. So students, this is really important. तो मंडेला कहते हैं कि शायद इतनी ज़्यादा एक इंसान को महान बनने के लिए शायद इतने ज़्यादा जुल्म सहने की ज़रूरत भी रहती होगी. ऐसे ही तो कोई इतना ग्रेट नहीं बन जाया करता होगा. ऐसा कहा भी जाता है ना कि जैसे सोना तप के ही खरा होता है, तो इसी तरीके से शायद इतनी जब ये ऑब्स्टेकल्स लाइफ में आती है तभी इतनी ज़्यादा हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, मतलब इतनी ज़्यादा ये यू कैन से ये लोग जो है महान, इतने ग्रेट, इनके कैरेक्टर जो है इतने महान बन पाते हैं, इतने ज़्यादा जुल्म सह कर इतने. तो दिस क्वेश्चन इज़ रियली इंपॉर्टेंट. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. मंडेला कहते हैं कि मेरा देश जो अफ्रीका है उसके अंदर मिनरल्स और जेम्स बहुत ज़्यादा है. यहाँ पे हीरे जवाहरात यहाँ पे जो है वो काफ़ी मिलते हैं, और जो मिनरल्स है वो भी काफ़ी मिलते हैं इस देश की मिट्टी में. लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी वेल्थ वो हीरे जवाहरात, वो मिनरल्स नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग हैं जो कि यहाँ के सबसे प्योरेस्ट डायमंड, सबसे प्योर डायमंड से भी ज़्यादा प्योर है और सबसे उनसे भी अच्छे हैं. तो मंडेला कहते हैं कि अपने हमारे देश की जो असली दौलत है वो यहाँ के लोग हैं. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. और कहते हैं कि जब मैं जेल में था और या जब हमारा स्ट्रगल चल रहा था डेमोक्रेसी के लिए, तो इन्हीं लोगों से, इन्हीं कॉमरेड से, इन्हीं साथियों से मैंने हिम्मत का मतलब सीखा था कि बहादुरी क्या होती है, करेज क्या होता है. इन्हीं दोस्तों से मैंने सीखा था. बार बार मैंने देखा कि किस तरह से मैन एंड वीमेन जो है एक आइडिया के लिए जीते हैं, एक प्रिंसिपल के लिए जीते हैं, और उसी के लिए वो अपनी ज़िंदगी दांव पे डाल देते हैं, उन्हीं के लिए अपनी ज़िंदगी रिस्क में डाल देते हैं वो, और एक सिद्धांत के लिए, एक उसूल के लिए वो अपनी ज़िंदगी जिया करते हैं. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. तो कहते हैं कि मैंने देखा है कि किस तरह से जो मैन हैं वो उन पे अटैक्स हुए हैं, उन पे इतने ज़्यादा जुल्म किए गए हैं, फिर भी वो लोग टूटे नहीं हैं. उन्होंने ऐसी स्ट्रेंथ दिखाई है, ऐसी रेजिलियंस दिखाई है. हाँ, रेजिलियंस ये होता है स्टूडेंट्स कि मान लीजिए आप पे बार बार जुल्म किए जाए, फिर भी आप टस से मस ना हो, यू डू नॉट बज. आई मीन आपकी उम्मीद बरकरार रहे, आपके आप जो है उस बात अपने लक्ष्य से पीछे ना हटें. सो दैट इज़ योर रेजिलियंस, यू कैन से योर स्ट्रेंथ आप कह सकते हैं. टफनेस इन यू इज़ कॉल्ड योर रेजिलियंस. तो कहते हैं कि ऐसी उन्होंने रेजिलियंस, ऐसी उन्होंने स्ट्रेंथ दिखाई मुश्किल घड़ियों में भी, कि जो इमेजिनेशन से भी परे हैं, जो इमेजिनेशन को भी डिफाई करते हैं, मतलब इमेजिनेशन हम इमेजिन भी नहीं कर पाते. आई लर्नड दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट. मैंने सीखा कि बहादुर होने का मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लगता. बहादुर होने का मतलब ये है कि आपको डर लगते हुए भी आप उस डर के ऊपर जीत हासिल करते हैं. द ब्रेव मैन इज़ नॉट he who does not feel afraid but he who conquers that fear. बहादुर आदमी वो नहीं है कि जिसे डर नहीं लगता. डर सबको लगता है, लेकिन जैसा आपने सुना भी होगा कि डर के आगे जीत है. लेकिन जो उस डर पे जीत हासिल कर लेता है वही सही मायने में बहादुर आदमी होता है. और ये कहा भी जाता है कि फेस योर फियर्स एंड योर फियर्स विल नॉट फेस यू. नो वन इज़ बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन. इंसान जो है वो जन्म से ऐसा नहीं होता कि सपोज इफ़ समबडी इज़ ऑफ वाइट स्किन एंड समबडी एल्स इज़ ऑफ डार्क स्किन, तो ऐसा नहीं कि जन्म से ही उसके अंदर ये फीलिंग्स होती है कि एक वाइट स्किन वाले को डार्क स्किन वाले से या किसी और बेसिस पे, किसी उसके बैकग्राउंड के बेसिस पे उससे नफ़रत करनी है या धर्म के बेसिस पे उससे नफ़रत करनी है. ऐसा नहीं होता. जन्म से उसे नफ़रत नहीं सिखाई जाती या उसे नहीं मिलती है.
People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. तो कहते हैं कि लोग जो है नफ़रत करना सीखते हैं, उन्हें सिखाया जाता है, और अगर वो नफ़रत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि इंसान के दिल में प्यार तो नफ़रत से भी ज़्यादा नेचुरली आता है, वो तो और भी जल्दी उनको सिखाया जा सकता है. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second. But it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. तो कहता है कि जो हमारे ग्रीमेस्ट टाइम्स थे, जो सबसे ज़्यादा डिप्रेसिंग टाइम था प्रिजन के अंदर, जब मैं और मेरे साथी वी वर पुश टू आवर लिमिट्स, का मतलब हमें इतना ज़्यादा सताया जाता था कि शायद किसी और को सताया जाता तो वो हार मान लेते, या फिर वट एवर आई मीन दे वुड हैव गिवन. लेकिन हम लोगों को जब हमारी लिमिट्स तक पुश कर दिया जाता था, हमें बहुत ज़्यादा तंग किया जाता था, जुल्म किए जाते थे, फिर भी मुझे वहाँ जो उन वाइट लोगों के जो गार्ड्स थे उनमें से किसी एक गार्ड में ह्यूमैनिटी की एक छोटी सी ग्लिमर एक नज़र आ जाती, एक छोटी सी मानवीयता की एक उम्मीद की किरण मुझे नज़र आ जाया करती थी. एंड चाहे एक पल के लिए, एक सेकंड के लिए क्यों ना हो, बट इट वाज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग. लेकिन ये काफ़ी था मेरे लिए, मुझे रीअश्योर करने के लिए, मेरा ये विश्वास बनाए रखने के लिए कि हर किसी के अंदर अच्छाई है, और इससे मेरा स्ट्रगल फिर से चलता रहता था. मैं फिर से एक हौसले के साथ मेरे स्ट्रगल में लग जाता था. मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड. इंसान की जो अच्छाई है ना, वो एक ऐसी ज्वाला की तरह है जिसे छुपाया तो जा सकता है, लेकिन जिसे कभी बुझाया नहीं जा सकता. मतलब अच्छाई हर इंसान के अंदर विद्यमान होती है. सो स्टूडेंट्स, यू विल ट्राई टू आंसर दिस ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक on the basis of your reading so far. You need to answer these questions orally only. You need not write these anywhere, and you need not submit this work too. After that, we'll move on to the next paragraph. In life, every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. किसी इंसान की लाइफ में दो तरह की जिम्मेवारियां होती हैं, दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जिन्हें ऑब्लिगेशंस कह सकते हैं. ये दो तरह के होते हैं. एक तो उसका ऑब्लिगेशन या जिम्मेवारी होती है अपने परिवार के प्रति, अपने पेरेंट्स, अपने वाइफ और अपने बच्चों के लिए जो जिम्मेवारी होती है. एंड सेकंड ऑब्लिगेशन इज़ फॉर हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने समुदाय के लिए या सोसाइटी जहाँ से वो आता है, या इवन अपने कंट्री के लिए भी. In a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. एक सभ्य और एक मानवीय समाज के अंदर एक इंसान ये अपनी दोनों जिम्मेवारियां अपने अपनी काबिलियत और अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग निभा पाता है. इंक्लिनेशंस का मतलब होगा कि यू कैन से इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़, मतलब काबिलियत. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस. तो मंडेला कहते हैं कि साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में, जहाँ अपार्टहाइड जैसा क्रूअल सिस्टम था, वहाँ पर मेरे जैसे किसी आदमी के लिए जिसका कलर डार्क था, और मेरे जैसे किसी आदमी के लिए इन दोनों जिम्मेवारियों को निभा पाना बड़ा मुश्किल था. इन साउथ अफ्रीका, अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड. साउथ अफ्रीका के अंदर एक ऐसा सिस्टम था जिसके अपार्टहाइड सिस्टम के कारण अगर मेरे कलर का कोई आदमी, डार्क कलर का कोई आदमी जिसने इंसान की तरह रहने की कोशिश भी की अगर, तो इस बात के लिए भी उसे सज़ा मिलती थी और उसे अलग कर दिया जाता था, उसे आइसोलेट कर दिया जाता था. इन साउथ अफ्रीका, अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबली ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. साउथ अफ्रीका के अंदर अगर किसी इंसान ने अपने लोगों के लिए अपनी ड्यूटी अगर फुलफ़िल करने की सोची भी, तो उसे उसके परिवार से अलग कर दिया जाता था. रिप्ट का मतलब होता है अलग कर देना किसी से फोर्सिबली. इनएविटेबली का मतलब उस जिस चीज़ को टाला ना जा सके, मतलब ऐसा हर किसी के साथ होता था. जिस किसी ने भी ये कोशिश की कि उसे अपने लोगों के लिए कुछ करना है, तो उसे उसके परिवार से, उसके घर से दूर कर दिया जाता था और उसे एक अलग ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर दिया जाता था. ऐसी ज़िंदगी जो कि एक सीक्रेट सी लाइफ हो और रिबेलियन से भरी, जिसमें एक इंसान के अंदर विद्रोह भरा हो, वो अपने परिवार से दूर रह रहा हो और उसकी एक एग्जिस्टेंस ट्वाइलाइट सी रहती थी.
ट्वाइलाइट का मतलब एक गुमनाम सी वो ज़िंदगी जीता था। इस तरह की ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर दिया जाता था जिसने भी अपने देश के बारे में या अपने लोगों के बारे में सोचने की कोशिश की थी। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. तो मंडेला कहते हैं कि स्टार्टिंग में मैंने मेरे परिवार से ऊपर किसी को भी नहीं रखा, यहाँ तक कि मेरे लोगों को भी नहीं रखा या मेरे देश को नहीं रखा मैंने। और जब मैंने ये देखा कि मैं जब लोगों के लिए कुछ करने लगा था, लोगों को मैं सर्व करने लगा था या उनकी सेवा में कुछ करने लगा था, तो मैं एक बेटे, एक भाई, एक फादर और एक हस्बैंड के तौर पे भी अपनी जिम्मेवारियाँ निभाने में सक्षम नहीं था। मुझे रोका गया था, मुझे रोका जा रहा था। मतलब अगर मैं अपने देश के लिए कुछ करना भी चाह रहा था तो मैं अपने परिवार की जिम्मेवारियाँ निभाने से रोका जा रहा था। I was not born with a hunger to be free. I was born free. Free in every way that I could know. मैं कोई इस डिज़ायर के साथ पैदा नहीं हुआ था कि मुझे आज़ाद होना है। मैं तो पैदा ही आज़ाद हुआ था। जिस भी तरीके से मैं आज़ादी को जान सकता था उस तरीके से मैं आज़ाद था बचपन से ही। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हर्ट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मिलीज under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. तो मंडेला कहते हैं कि मैं मेरी मदर की हट जो थी, जो झोपड़ी थी या जो छोटा घर था जहाँ पे मतलब उसके पास खेतों में दौड़ दौड़ सकता था, मुझे आज़ादी थी, मुझे कोई रोकने वाला नहीं था। मेरे गांव से जो एक साफ़ सी नदी बहती थी मैं उसमें तैरने के लिए आज़ाद था बचपन से ही। मैं खुले आसमान में चमकते सितारों के बीच में अगर मैं मिलीज या मकई के कुछ दाने अगर भूनना चाहता था कभी तो उसके लिए मैं आज़ाद था। या फिर जो भी धीरे धीरे चलने वाले जो बुल्स थे उनकी अगर चौड़ी पीठ पे मैं बैठ के सवारी करना चाहता तो उसके लिए भी मैं आज़ाद था। और जब तक मैं मेरे फादर के जो जो भी उनकी आज्ञा थी उनकी उसकी पालना करता रहा और मेरी जो ट्राइब थी, मेरा जो कबीला था उसकी रीति रिवाजों से मैं बंधा रहा या उनका पालन करता रहा, मुझे कोई भी ट्रबल नहीं कर सकता था। मुझे कोई भी या तो इंसान के बनाए हुए रूल्स या फिर भगवान के बनाए हुए रूल्स, मुझे किसी का भी डर नहीं था जब तक मैं मेरे फादर की बात मानता और मेरे कबीले के जो रूल्स थे, जो कस्टम्स थे उनका पालन करता। अबाइड बाय का होता है किसी चीज़ से बंध के रहना, मतलब किसी चीज़ का पालन करना, अबाइड बाय द रूल्स। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, then that I began to hunger for it. तो जब मुझे मैं थोड़ा बड़ा हुआ और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरी जो बचपन की जो या बॉयहुड की जो मेरी जो फ्रीडम थी वो एक इल्यूज़न थी, एक भ्रम थी, वो सही मायने में फ्रीडम नहीं थी। और जब मैंने ये डिस्कवर किया बड़े होकर कि एज ए यंग मैन मेरी जो फ्रीडम है मुझसे पहले ही ले ली गई है, तब मुझे इसके लिए भूख महसूस होने लगी। मतलब बचपन में तो मेरे लिए फ्रीडम के जो मायने थे मुझे उस तरह की फ्रीडम थी, लेकिन जब जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, जैसे जैसे मुझे पता चला कि हमारी कम्युनिटी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे सही मायने में फ्रीडम नहीं है और मैं उसके लिए तड़फने लगा उस फ्रीडम के लिए। At first, as a student, I wanted to freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose. स्टार्टिंग में जब मैं एक स्टूडेंट था तो मैं फ्रीडम सिर्फ मेरे लिए चाहता था। मतलब मुझे इस तरह की ट्रांजिटरी फ्रीडम्स चाहिए थी जो कि परमानेंट नहीं होती। जैसे कि मैं अगर नाइट में बाहर रहूँ कुछ ज़्यादा देर के लिए तो मैं उसके लिए फ्रीडम चाहता था। जो मेरा मन करे वो मैं पढ़ना चाहता था और जिस जगह मैं जाना चाहूँ वहाँ मैं जाना चाहता था। तो मुझे एज ए स्टूडेंट ये फ्रीडम्स चाहिए थी। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. और मंडेला कहते हैं कि जब बाद में मैं बड़ा हुआ, जोहान्सबर्ग की बात है, तो मेरी तीव्र इच्छा होने लगी। आई डिज़ायर्ड फॉर, यर्न का मतलब होता है डिज़ायर करना, इच्छा करना किसी चीज़ के लिए। तो मुझे कुछ बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम्स चाहिए थी, जैसे कि मैं मेरे फुल पोटेंशियल को अचीव करूं, मतलब जितनी मेरे अंदर काबिलियत है उसके अकॉर्डिंग मैं मेरी लाइफ में सक्सेसफुल बनूं। उसके अलावा अपने मैं ऑफ अर्निंग माई कीप, मतलब एक ऐसा मेरे पास लाइवलीहुड का साधन हो, उसके लिए मुझे फ्रीडम चाहिए थी। शादी करने की फ्रीडम और एक परिवार आगे बढ़ाने की फ्रीडम मुझे चाहिए थी। और मैं एक ऐसी फ्रीडम भी चाहता था कि जैसे एक लॉफुल लाइफ के अंदर कोई भी मुझे ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, मतलब मेरे राइट्स भी हो और मेरी ड्यूटीज़ भी हो। जिस तरीके से मैं औरों के राइट्स को
फॉलो करता हूँ या उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उस तरह से लोग मेरे राइट्स को भी, मेरे अधिकारों का भी रिस्पेक्ट दें। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. बट उसके बाद मैंने धीरे धीरे ये ऑब्ज़र्व किया कि केवल मुझसे ही मेरी आज़ादी नहीं छीनी गई थी, मेरे जैसे मेरे और ब्रदर्स और सिस्टर्स थे, मतलब मेरी कम्युनिटी के जो भी लोग थे, डार्क स्किन पीपल्स, उन सभी से उनकी आज़ादी छीनी गई थी, एंड दे वर ऑल्सो नॉट फ्री. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. तो मंडेला कहते हैं कि सिर्फ मेरी ही फ्रीडम कर्टेल नहीं की गई थी, मेरी ही फ्रीडम रिड्यूस नहीं की गई थी, इसके अलावा हर कोई जो मेरे जैसा दिखता था उन सभी की फ्रीडम रिड्यूस की गई थी. दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल. तो मंडेला कहते हैं कि तभी मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की जो कि जिसका नेम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तभी मेरी खुद की आज़ादी के लिए जो मेरी हंगर थी वो एक बड़ी हंगर में तब्दील हो गई, उसमें कन्वर्ट हो गई. अब मैं आज़ादी सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरी पूरी कम्युनिटी के लिए चाहता था. इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. तो मेरी यही जो डिज़ायर थी, जो मेरे लोगों की आज़ादी की जो डिज़ायर थी, एक ऐसी जो डिज़ायर थी जिसमें मैं चाहता था कि वो लोग डिग्निटी से, शान से रहें, सेल्फ रिस्पेक्ट से रहे, इस डिज़ायर ने मेरी ज़िंदगी को एनिमेट कर दिया था. एनिमेट का मतलब क्या होता है कि मैं इस प्रोसेस में, इस स्ट्रगल में काफ़ी एक्टिव हो गया था. दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन. और उसी डिज़ायर ने क्या कर दिया, एक डरपोक से आदमी को एक बहादुर आदमी में कन्वर्ट कर दिया. दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल. उसी डिज़ायर से क्या हुआ, एक कानून को मानने वाला वकील, अटॉर्नी का मतलब होता है वकील, तो एक कानून को मानने वाला वकील एक क्रिमिनल बन जाता है उसी डिज़ायर के कारण. दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम. उसी डिज़ायर के कारण एक ऐसा आदमी जो अपने परिवार से प्यार करता है वो एक बेघर आदमी बन जाता है. एंड दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क. और एक ऐसा आदमी जो ज़िंदगी को खुल के जीता था, जो ज़िंदगी से प्यार करता था, वो इसी डिज़ायर के कारण एक साधु जैसी ज़िंदगी जीने लग जाता है. आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. कहते हैं कि मैं कोई बहुत ही अच्छा इंसान, वर्चुअस, जो जिसके अंदर अच्छे वर्च्यूज़ हो, अच्छे गुण हो, ऐसा भी नहीं हूँ. और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग कि मैं दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी का या अपने कंफर्ट्स में बलिदान कर दूँ. हर कोई इंसान ऐसा होगा. अगर मैं बात करूँ, मेरे पास अगर कोई और भी इंसान खड़ा है तो मैं उससे ज़्यादा दयालु या उससे ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ. But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. लेकिन मैंने ये पाया कि जब मैंने देखा कि मेरे लोग, मेरे जैसे दिखने वाले लोग, मेरी कम्युनिटी के लोग जब आज़ाद नहीं थे, तो अगर मुझे थोड़ी बहुत आज़ादी मिल भी जाए, जो लिमिटेड फ्रीडम जो मुझे मिल भी जाए, तो मैं उसको एन्जॉय नहीं कर पा रहा था. फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल. The change on any one of my people were the change on all of them. The change on all of my people were the change on me. स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. कहते हैं कि आज़ादी जो है वो उसे आप डिवाइड नहीं कर सकते. आज़ादी को इस तरह से आप सेगमेंट्स नहीं बना सकते कि कुछ लोगों को लिमिटेड आज़ादी, कुछ लोगों को बिल्कुल भी आज़ादी नहीं. तो ऐसा आज़ादी जो है, फ्रीडम जो है वो इंडिविजिबल है, उसे आप तोड़ नहीं सकते. कहते हैं कि मेरे अगर लोग जो थे कम्युनिटी के, उनमें से अगर किसी के ऊपर भी कोई जंजीरें थी, कोई गुलामी की अगर बेड़ियाँ थी, तो इसका मतलब अगर कुछ लोगों पे थी तो इसका मतलब वो सभी लोगों पर थी कम्युनिटी के. और अगर मेरे सभी लोगों पर वो बेड़ियाँ थी, इसका मतलब वो बेड़ियाँ मुझ पर भी थी. आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड. तो मंडेला कहते हैं कि मैं जानता था कि जुल्म करने वाले को भी आज़ादी चाहिए, जितनी आज़ादी जुल्म सहने वाले को चाहिए. ऑप्रेसर होता है somebody who oppresses, या जो जुल्म करता है, और जो ऑप्रेस्ड होता है जिस पे जुल्म किया जाता है. तो कहता है कि जुल्म करने वाला भी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है जितना कि जुल्म सहने वाला. अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड. ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस. एक इंसान अगर वो दूसरे इंसान की आज़ादी छीनता है तो वो भी किसका गुलाम है,
वो नफ़रत का शिकार है, वो नफ़रत की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, वो आज़ाद नहीं है। वो प्रेजुडिस जिसे हम कहते हैं कि किसी को बिना किसी कारण से किसी को जज करना या किसी के लिए कोई नेगेटिव फीलिंग्स होना, तो वो उसके बार्स के उसकी सलाखों के पीछे है, नैरो माइंडेडनेस की सलाखों के पीछे है वो। मतलब वो क्लियरली सोच नहीं पा रहा है, वो उसकी थिंकिंग नैरो है, वो नफ़रत का शिकार है। मतलब वो भी पूरी तरीके से आज़ाद नहीं है। अगर वो आज़ाद होता तो शायद वो किसी पे जुल्म ही ना करता। I'm not really free if I'm taking away someone else's freedom, just as surely as I'm not free when my freedom is taken from me. अगर मंडेला कहते हैं कि जिस तरह से अगर कोई मेरी आज़ादी छीनता है तो मैं आज़ाद नहीं हूँ, ठीक उसी तरीके से अगर मैं भी किसी की आज़ादी छीनता हूँ तो भी मैं आज़ाद नहीं हूँ। क्योंकि अगर मैं किसी की आज़ादी छीन रहा हूँ तो इसका मतलब मेरा दिमाग जो है वो भी इस प्रेजुडिस, नैरो माइंडेडनेस या हैट्रेड की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, मैं उनसे आज़ाद नहीं हूँ। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। जो जुल्म करने वाला होता है, जो जुल्म सहने वाला होता है, दोनों से ही उनकी मानवीयता छिन जाती है। ठीक है, जो जुल्म कर रहा है वो तो अमानवीय व्यवहार कर रहा है, क्योंकि वो दूसरे पे जुल्म ढा रहा है, तो वो भी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ। और जो जो जुल्म सहन कर रहा है वो अगर उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा तो वो भी क्या है, वो इन गुणों से वंचित है, या उसके अंदर भी मानवता आप कह सकते हैं कि नहीं है। So students, this was your chapter, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. And if you want to watch the entire video of Nelson Mandela's speech on that inauguration day, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल देता हूँ, and that link will take you directly to that video where Nelson Mandela's complete speech is given. So thank you for watching this. And if you found this video useful, then please don't forget to like, share and subscribe this channel. Thank you.